ओके हेलो स्टूडेंट्स। मई 22 के सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पर कवर करते हैं अपन फटाफट। डायरेक्टर्स चैप्टर में सेक्शन 150 है ना, डेटा बैंक का, एंड उसमें रूल 6 एक डाला हुआ है कि आपको एक ऑनलाइन एग्जाम पास करनी है वगैरह वगैरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। तो वहां पे एक एग्जेम्पशन दे दिया है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पासिंग द ऑनलाइन टेस्ट इज गिवन टू एनीवन हु हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years an advocate of a court, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इनको बेसिकली एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो ही। ये तो ऐसा हो गया ना कि पहले क्या हो रहा था कि हम 20 30 साल 40 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी बोल रहे थे कि भाई हाँ चलो आके एग्जाम लिखो। सो दैट वाज नॉट नीडेड। तो अभी 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो नो नीड टू राइट द एग्जाम। तो ये तो ऐसा ही हो गया ना। पहले ऐसा हो रहा था कि शाहरुख खान हो आप फिर भी आपको ऑडिशन देना पड़ रहा था, बट हाँ अब नहीं नीडेड है वो। देन केएमपी सेक्शन 204 जो है ना, सेक्रेटेरियल ऑडिट, उसमें एक छोटा सा मिस्टेक था। तो ऐसा है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है वो हर लिस्टेड कंपनी को करवाना है। एंड रूल 9 सेज फॉर पब्लिक कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल 50 crore और मोर, or having turnover of 250 crore or more, or for any company. Now this is not just public company, this can be any company, private ho, public ho, etc., any type of a company, if outstanding loan from bank or public financial institution is 100 crore or more. Next, BOD. There was section 173 जिसमें थोड़े restrictions लिखे हुए थे. So now there are no more restrictions for meetings held by electronic mode. So any matter can now be dealt with in the meetings by इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑडियो विजुअल मोड है, एक्सेट्रा। एवरी मैटर कैन बी नाउ डेल्ट विथ। अर्लियर देयर वर रिस्ट्रिक्शंस बट नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड। सो दिस पार्ट in the notes wherever you see, you just have to cancel it out because now this is not at all relevant. At every meeting held by any mode, you can discuss anything. Next, foreign company. So now there is something called as IFSC, International Financial Services Center. ये जो IFSC है, this is a new concept where foreign exchange में बहुत सारे transactions होंगे in share market, bond market, etc. etc. Now IFSC के लिए there are new set of rules. Okay, so IFSC का जो भी है अपने एक्ट से ये लोग हटा रहे। सो नाउ पहले डेफिनेशन जो था सेक्शन 2 सब सेक्शन 42, इलेक्ट्रॉनिक मोड का एक डेफिनेशन था। So electronic based issue or listing of securities in IFSC is now excluded from the definition of electronic mode. तो basically this will not come under our chapter. इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने इशू भी किया है, still it is not covered under electronic mode because now we want to exclude it from our companies act. उसके लिए separate rules बनाएंगे। Similarly, 393A, central government had a power to exempt some companies, and now CG has exempted first foreign companies, and second companies incorporated outside India or to be incorporated outside India, whether it has or has not or will not form a place of business in India. From complying section 387 to 392 if securities are issued in IFSC. So basically IFSC में अगर आप securities issue कर रहे हो, then you don't have to comply with these sections 387, 388, 389, 390, 91 and 92 because new set of rules are up for that. Next, miscellaneous chapter में एक छोटा सा mistake था. So निधि company में dividends का एक concept था. So now the new or the correct interpretation is that a Nidhi company cannot declare dividend more than 25% or higher amount as approved by the RD for written reasons unless it satisfies three conditions. Now, three conditions are equal amount should be transferred to general reserve and no default should be there in repayment of matured deposits on even the interest on that, and you have to comply with the rules. So basically मोर देन 25% अगर डिक्लेयर करना है तो भी ये तीनों कंडीशन करना है आपको फॉलो। बट इफ यू थिंक दैट थोड़ा ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए तो आरडी का अप्रूवल लेके यू कैन क्लेम अ हायर लिमिट। सो फॉर एग्जांपल इफ आरडी इज सेइंग के मोर देन 40% का एक अपर लिमिट डाल देते, सो बेसिकली आरडी इज सेइंग दैट 25 के बदले 40 कर देते लिमिट, फाइन। सो मोर देन 40 इफ यू वांट टू गो, देयर आर दीज थ्री
conditions. So if you want to declare up to 25, then there is no restriction. But yeah, if you want to go beyond 25 or higher limit as said by RD, then that is okay. Here, if you satisfy all the three conditions to go beyond 25 or higher limit, that's allowed. But uske bina allow nahi hoga. So in a nutshell, if 24% dividend hai, तो no need to comply these conditions. But हाँ, अगर आपको more than 25 जाना है, जैसे for example 28, then you need to satisfy these three conditions. And RD can change that 25 to anything. Very important, SEBI LODR, Regulation 3, applicability of LODR. LODR किसको apply करता है? Unless otherwise specified, LODR shall apply to the listed entities that have listed any of these on recognized stock exchange. So ये चार्ट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. So there were equity shares earlier, convertible securities भी था, listed on main board और SME जो छोटी कंपनीज के लिए होता है, और इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. तो पहले ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, नाउ इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. देन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इट कैन बी डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, एनीथिंग. इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड सरफेसी सिक्योरिटी रिसीट्स, ये सेम रहेगा. तो बेसिकली देयर इज अ चेंज हियर, एंड हियर देयर वर अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, सबको क्लब करके अब बोल दिया है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. नाउ a very important amendment is in the next line here. This one is very important, and a lot of students had asked me this earlier. Market cap criteria makes listed entities liable to comply with some regulation. These regulations apply even if market cap falls below the threshold. Now what does this mean? The example, just XYZ regulation, कोई भी एक regulation है, and it says that this regulation applies to top 1000 listed entities. Now what is top 1000 listed entities? So this is based on market cap of the previous year, so 31st March of the last year. Now on that date, let's say top 1000 का मेरे पास पूरा एक list आ चुका है, but market cap keeps on changing daily. Now what if I was, let's say, 10th rank as per market cap, but my name is Yes Bank. So now I'm not even in the top 1000, for example. Let's say my number is now 1200. Should I still follow LODR? The answer is yes. एक बार जो अगर आप 1000 के लिस्ट में आ गए, then there is no escape. So basically you have to follow forever. So there is no exemption for you. So basically if you are in the top 1000 or whatever the regulation says, it may be top 500, top 1000, anything, you will have to follow it even though the market cap is falling below the threshold. So that's a very important amendment. And कुछ नहीं, this is just similar to marriage. ऐसा होता है कि भाई एक बार शादी हो गई, फिर आप भाग नहीं सकते, ये खत्म हो गया, you are now committed. Next, high value debt listed entity करके एक concept है. This means an entity that has listed non-convertible debt of 500 crore or more. ये 5000 नहीं है, 500 crore और more है. तो बेसिकली क्या होता है पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, खाली शेयर्स लिस्ट नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज पे, सिर्फ शेयर्स लिस्ट नहीं होता है, इवन डेट, मतलब कि ये बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी लिस्ट होता है. सो एनी कंपनी जिसने ये लिस्ट किया 500 crore और मोर विल नाउ बी कॉल्ड एज हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी. ये आगे काम आएगा, देखना. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो है ना, उसमें मेजर चेंजेस है. अ वेरी गुड चांस ऑफ दिस अपीयरिंग ऑन योर एग्जाम. This risk management committee concept is applicable to top 1000 companies by market cap as on the close of last financial year and high value debt listed entity जिसने ये NCDs list किया है of 500 crore और more. Constitution में नया रूल आया हुआ है, minimum 3 members होना चाहिए, out of which majority must be directors of the company. If the company has outstanding SR equity shares, वो जो अलग superior right वाला shares होता है, थोड़े shareholders को अलग right है and दूसरों को अलग voting right है, अगर ऐसे shares है, then at least 2/3 of the committee should have independent directors, or other 2/3 of the committee must be independent, or else at least one independent director will do. Then there are new rules for meetings, जैसे कि meet twice a year, gap of maximum 180 days between two consecutive meetings. 2 बार आपको मिलना है,
दो मीटिंग के बीच में 180 के ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए. Quorum must be higher of 1/3 of total members or 2 members, whichever is higher, with at least one director. तो एक डायरेक्टर तो भाई होना ही चाहिए. So I'll show you the chart also of risk management. Just a second. उसके पहले एक नया पावर दिया हुआ है आरएमसी को, just like audit committee, that they can seek information from any employee, obtain outside legal or any other professional advice, secure attendance of outsiders with relevant expertise. So basically expert advice वगैरह ये लोग ले सकते हैं. Okay, I'll show you the risk management chart. So here regulation 21 risk management committee. Constitution या composition of the committee. So at least 3 members and majority should be directors. तो majority directors है तो बाकी लोग कौन होंगे? So senior executives of the company can also be members. So that's the reason कि सिर्फ majority directors होंगे तो चलेगा, बाकी senior executives चलेंगे. अगर outstanding SR equity shares है तो 2/3 of the committee should be independent. Otherwise, one independent director has to be there. Then chairperson of the committee. So chairperson has to be the member of BOD, or in other words, एक director होना चाहिए. And committee meetings, so meet twice a year. Maximum gap will be 180 days. So they're ensuring कि हाँ 6 महीने में ये मिलेंगे ही. Quorum for the meetings, 2 members or 1/3 of the members, whichever is higher, just like the previous 2 committees. But यहाँ पे एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, बट एक डायरेक्टर होना चाहिए. सी हियर देयर वाज इंडिपेंडेंट, हियर देयर वाज इंडिपेंडेंट, दो और एक. यहाँ पे एक डायरेक्टर चाहिए, इंडिपेंडेंट का नहीं जरूरत है, जस्ट अ नॉर्मल डायरेक्टर विल डू. Then regulation 24 में एक चेंज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी. सो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, 50% जो था उसमें साइन का चेंज कर दिया है. रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग इन अ सब्सिडियरी टू लेस देन और इक्वल टू 50%. Earlier it was just less than 50%. This was wrong. Less than or equal to 50% अगर हुआ, then you will need those approvals now. Regulation 26, restriction on committee memberships. There are restrictions कितने committees में आप member बन सकते हो. So there we used to exclude a private limited company, foreign company, and a Section 8 company. Now we also exclude high value debt listed company. So please don't count a high value debt listed company there. Next, 27th regulation, quarterly compliance report on corporate governance. Now it will be 21 days from the end of quarter. Earlier it was 15. So a lot of askable material in LODR. Next, IBC. IBC में पहली बात तो ये प्री पैक वाला अभी भी बाकी है. For the time being, you can refer the ICI module. Now, section 24 and regulation 17, very, 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 very important, but also conflicting. अब हुआ क्या है, I will tell you. सेक्शन में कुछ और लिखा हुआ था पहले कि फर्स्ट सीओसी मीटिंग जो है वो कभी होगी, बट नाउ रूल इज सेइंग समथिंग एल्स. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रियल बेयर एक्ट एंड द रूल्स. तो अभी निर्मला सीतारामन को मैंने वीडियो कॉल किया था. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हर, सो शी इज टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन. थोड़े टाइम में अमेंड कर देंगे, तो ऐसा बात हो चुका है, डोंट वरी. एनीवे, अब क्या है स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, मीटिंग्स ऑफ द सीओसी में द IRP shall file a report certifying the constitution of the COC within 2 days of verifying the claims. तो बेसिकली आपको क्या करना है, क्लेम्स पहले वेरीफाई करना है कि ओके एवरी क्रेडिटर वट एवर दे आर आस्किंग फॉर इज ट्रू. क्लेम्स वेरीफाई हो गया, वहां से 2 दिन है. क्या करना है ये 2 दिन में? 2 दिन में एक रिपोर्ट फाइल करना है. ओके, दिस इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी. सीओसी में ये लोग बैठे, these are the creditors. Then IRP shall hold the first COC meeting within 7 days of filing this report with the tribunal. So ये report के बाद फाइल हो गया, उसके 7 days के अंदर the very first COC meeting will be held and RP shall be appointed in that meeting. Now this is regulation 17, but earlier कुछ और बोलते थे. Now there is a conflict. Study material में भी दोनों पेज पे अलग अलग दिया हुआ है. So I think you can write this in the exam, or you can write both. I don't mind, but I think you should be writing this because study material में ये clearly add हो चुका है, and this is what we follow in practical life also. Then I'll come to FECRA, but before that, IBC में ही study material में थोड़ा बहुत amendment आया हुआ है. So there were a lot of forms
that were used to be mandatory. These were CIRP 1 to 6. Anyway, वो syllabus में नहीं डाला, but CIRP 7 करके एक form है, वो डाला हुआ है. So basically what happens is, if public announcement is not made by the IRP from T+3, so from the appointment of IRP 3 दिन मिलता है public announcement के लिए. Note that. अगर 3 दिन में फाइल नहीं किया तो you have to file form CIRP 7. कितने दिन में? तो डेट स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 2 +3 days. सो फॉर एग्जांपल, अगर मंडे को IRP अपॉइंट हो चुका है, so here you have T+3. so for example, Tuesday, Wednesday and Thursday. Thursday is the time limit for filing some form. अगर तुमने ये पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया और उसका फॉर्म नहीं भरा, पब्लिक अनाउंसमेंट should be made by Thursday. That is the rule. अगर नहीं किया तो this date +3 days. So Friday, Saturday and Sunday. If Sunday it is shut, तो Monday. इतना टाइम मिलेगा CIRP 7 फाइल करने के लिए. Now it is online, so I don't think Sunday को shut लेना चाहिए. Sunday also you can file. Okay. So Sunday is the due date. Well, now what if you don't file this CIRP 7? So in that case, timeline for subsequent filing. So let's say for example, ये activity complete नहीं हुई है, there is a default still going on, तो X plus 30, 60, 90 and so on. So for example, ये Sunday को अगर तुमने for example CIRP 7 फाइल कर दिया, अगर नहीं किया तो obviously penalty होगी, which is not there in our syllabus. But yeah, if let's say you have filed it, but अभी भी ये public announcement करी ही नहीं है, अगर अभी तक नहीं करा है तो ये वाले डेट से, ये जो संडे आया था ना आंसर में, यहां से 30 डेज के अंदर आपको वापस CIRP 7 करना है. 60 डेज अभी तक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ओके, वापस CIRP 7, 90 डेज एंड सो ऑन. सो कंटिन्यूअसली यू हैव टू कीप फाइलिंग CIRP 7. वैसे ही नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ RP इज नॉट मेड बाय T+7. अभी मैंने ऊपर एक रूल पढ़ाया जिसमें ऐसा था कि पहले जो भी क्लेम्स होंगे वो वेरीफाई हो जाएंगे COC का, देन द COC विल बी कंस्टिट्यूटेड एंड उसका रिपोर्ट फाइल हो जाएगा कंस्टिट्यूशन का विद इन 2 days, एंड देन विद इन 7 days ये फर्स्ट COC की मीटिंग होगी, एंड हियर द RP हैज टू बी अपॉइंटेड. नाउ इफ इट इज नॉट डन T+7 में तो क्या, तो जो भी लास्ट डे था वहां से 3 days के अंदर CIRP 7 फाइल करो. अगर अभी तक नहीं हुआ है तो 30th day, 60th day, 90th day from that day you have to keep filing CIRP 7. Next, info memorandum is not issued within 51 days of public announcement. या request for resolution plan is not issued within 51 days from the issue of info memorandum. What is info memorandum? Basically ये जो कंपनी है जो bankrupt वगैरह हो रही है उसका सब इंफॉर्मेशन होता है इसमें. सो पब्लिक अनाउंसमेंट से 51 डेज का टाइम लिमिट है फॉर इन्फो मेमोरेंडम इशुएंस, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा. यहां से 51 डेज का टाइम है टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान. तो जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके पास रिक्वेस्ट भी डालना पड़ेगा, प्लीज आप रेजोल्यूशन प्लान लेके आओ. ये नहीं किया तो अगेन सेम जो भी लास्ट डेट था 51st डे, वहां से 3 days के अंदर CIRP 7 एंड देन 30, 60, 90. Similarly, CIP isn't completed by T+188th day. So basically the time limit for completion of IBC. तो अगर ये 188th day तक नहीं हुआ, again 188th day plus 3 days है for CIP 7 and then 60, 90, etc., etc. 30, 60, 90 and so on. Now we go on to FECRA. FECRA वाला जो पार्ट है ना, ये नवंबर के टाइम पे भी आ गया था, बट currently it has been added newly, so I have considered it here. FECRA में अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए नया वाला तो फीस 10,000 है, रिन्यूअल करोगे तो 5,000. Then extra conditions to be met for the grant of registration certificate. Applicant must be in existence for at least 3 financial years. तो 1 साल हो गया अगर आपको और आप FC लेने जा रहे हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, that's not possible. For registration 3 years existence होना ही चाहिए, 3 financial years. Applicant must have spent 15 lakh or more till date on activities to satisfy its objects. So basically आप local donations लो चलेगा, but foreign contribution अगर आपको चाहिए तो you will have to first wait for 3 years, and also you should have spent 15 lakh rupees or more
ऑन योर ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग चैरिटी, यू आर डूइंग you're providing medical relief to the poor, education provide कर रहे हो, etc etc, whatever it is. Spending on assets can be counted if the owners of the trust give an undertaking that assets will stay vested with the trust till RC expiry, and only if assets are used for its objects. For example, my aim is education for poor. अगर मुझे ये करना है education for poor, and let's say I have started a trust. Now what I do is I take local donations. I take local donations in my trust. अब if I want to provide education, I thought of building a school. Okay, so school is basically an asset. अगर ये asset मैंने build किया and I have spent 15 lakh or more on this asset, this will also count. But to count, दो condition है. First condition ये है कि ये जो asset है ये RC expiry तक ये trust के पास ही होना चाहिए, and also this asset should be used for my object which is education for poor. तो ही आपको RC मिलेगा. Rule 9A, if I am going to get foreign country worth more than 1 crore, अगर 1 करोड़ के ऊपर का मिलने वाला है over multiple years, ये XYZ को मिलने वाला है, then XYZ must take permission to receive FC in parts with the central government. तो basically आप permission लो central government का that you want to receive more than 1 crore over multiple years. CG may allow it, but second installment or subsequent installments can be received only if the first installments 75% is used by XYZ. So for example, first installment is of 10 lakh. Okay, this is the first installment XYZ को आया. अब सीजी क्या बोलेगा पता है कि भाई पहले तू एटलीस्ट 7.5 लाख को यूज कर, एटलीस्ट 7.5 को यूज कर. इफ यू हैव डन दिस, ओके, नाउ यू कैन रिसीव योर सेकंड ट्रांच वर्थ लेट्स से 20 लाख एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो कोई भी इंस्टॉलमेंट आया उसका 75% अगर आपने यूज करा है तो ही आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जा सकते हो, ऐसा सीजी बोलेगा. ओके, एक लास्ट पीएमएलए के स्टडी मटेरियल में कुछ ऐड हुआ है. नाउ लास्ट में थोड़े सेक्शंस आए हुए हैं 59 60 वगैरह वगैरह, इग्नोर दोस, बट रूल 3 करके एक अच्छा टॉपिक आया हुआ है. सो लेट्स जस्ट चेक व्हाट इज रूल 3. ऐसा है कि नवंबर 21 में एक अमेंडमेंट आई थी एंड उसमें ना रिपोर्टिंग एंटिटी का एक डेफिनेशन आया हुआ था. यू कैन सी माय नवंबर 21 अमेंडमेंट वीडियो, या नोट्स भी देख सकते हो नए वाले. सो रिपोर्टिंग एंटिटी में ना वही सब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैसीनो, ज्वेलर्स वगैरह आ जाते हैं, उनको कुछ तो भी रिपोर्टिंग करना है. सो नाउ एज पर रूल 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. तो ऐसा है कि कैश ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी मैं पहली बात जो डॉलर है, पाउंड है, या वट एवर करेंसी इट इज, अगर वो मोर देन 10 लाख, अगर रुपीज में कन्वर्ट मारो तो मोर देन 10 लाख अगर ये हो रहा है पर ट्रांजैक्शन, या फॉर दैट मैटर फॉर एनी ट्रांजैक्शन, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको रिकॉर्ड्स कुछ तो भी मेंटेन करना पड़ेगा उसका. नाउ एग्जाम्पल, समझो कसिनो में कोई बंदा जा रहा है, कोई समझो बाहर से फॉरेनर आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है, इधर अपना गोवा में कसिनो है, सिक्किम में कसिनो है, तो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है. और ये जो बंदा आया हुआ है ना, उसका लाइफ में एक सिंपल मोटो है. क्या मोटो है? कि भाई अपने पसीनों से कमाए हुए पैसे कसिनो में अपन डबल करेंगे और हसीनों पे उड़ाएंगे, ठीक है ना. ऐसा मस्त ले लिया, पसीनो कसिनो हसीनो. तो समझो उसका ये एम है, और ये यहाँ पे आया और सीधा सीधा डॉलर्स निकाला विच इज वर्थ मोर देन 10 लाख रुपीस, और उसने दिया कसिनो के रिसेप्शन पे और बोला मेरे को इतना चिप दो, मेरे को खेलने का. अब अपने को तो डाउट जाएगा भाई इतना कैश किधर से कोई लेके आया, तो बस आपको इसका रिकॉर्ड रखना है, आपको ये मेंटेन करना है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा. सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस अगर है इफ टोटल इन अ मंथ एक्सीड्स 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, समझो ये फॉरेनर शातिर निकला, वो क्या करता है पता है, वो फर्स्ट ऑफ द मंथ, समझो ये जून चल रहा है, तो फर्स्ट जून को आके वो सिर्फ 2 लाख का कैश दे के चिप्स लेता है कसिनो में. फिर सेकेंड जून को आया वापस 2 लाख. ऐसे करते करते अगर वो पार्ट्स में बांट रहा है वो कैश,
कोई बात नहीं, टोटल इन अ मंथ अगर 10 लाख के ऊपर गया ना फॉरेन करेंसी वाला, तो भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। फिर कैश ट्रांजैक्शंस है, वेयर forged or counterfeit currency notes or bank notes have been used as genuine, or where any forgery of valuable security or document has taken place facilitating the transaction। अरे सिंपल बात है, फेक नोट्स का बात कर रहे हैं। ये फॉर्ज काउंटरफीट वगैरह जो है ना, बेसिकली फेक नोट है जो कोई सेंट्रल बैंक या वगैरह ने इशू नहीं किया हुआ है। अगर आप फेक को जेन्युइन बताते हो या फिर कोई भी फॉर्जरी करते हो, ये केस में ये आपको जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है वो रिकॉर्ड रखेगी और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। फिर और दो है, all suspicious transactions, whether or not made in cash by deposit, withdrawal, transfer, check, credit, debit, in non-monetary accounts like let's say DMAT है, security account, money transfer, loans and advances, और collection services of currency, ये कोई भी फॉर्म में होने दो, भले वो कैश में हो या ना हो, अगर वो सस्पिशियस है ना, तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, व्हाट इज सस्पिशियस, ये तो हमको समझा के चलो, किसी ने कुछ डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, ट्रांसफर वगैरह वगैरह जो भी किया, डीमैट अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो, जो भी हो, बट व्हाट इज सस्पिशियस, तो उसके लिए नीचे एक डेफिनेशन है, वील गो टू दैट। बट बिफोर दैट और एक ट्रांजैक्शन देख लो, ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिसीट्स बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू मोर देन 10 लाख और इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली अगर आपको फॉरेन करेंसी समझो, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन है, जो भी करेंसी में आया, अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा आ रहा है जिसमें रिसीट इज मोर देन 10 लाख पर ट्रांजैक्शन रहेगा, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन जिसमें रिसीट बाय एनपीओ इज मोर देन 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, ये भी रिपोर्ट करके रखना है, रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, व्हाट इज सस्पिशियस, ये देखो सस्पिशियस का मतलब क्या है, तो भाई सस्पिशियस का एकदम सिंपल डेफिनेशन है ये 4 पॉइंट में। पहला, सस्पिशियस मतलब व्हाट गिव्स राइज टू अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इट मे इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन आवर स्केड्यूल टू दिस एक्ट। ये एक्ट में जो स्केड्यूल दिया हुआ है पार्ट एबीसी वगैरह, उसमें कोई भी ऑफेंस तुमको ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है वो ये ऑफेंस करके आया हुआ है, तो इसको सस्पिशियस मान लो, इसका रिकॉर्ड रखो। Any transaction that appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity, फुकट कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है। जैसे कि अपन ने इंटरनेशनल टैक्स जो इलेक्टिव है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें थोड़े स्टूडेंट्स जो भी वो पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उनको पता रहेगा, गार करके एक टॉपिक है, तो उसमें एंटी अवॉइडेंस के लिए बहुत बड़े बड़े फुकट के ट्रांजैक्शंस करते हैं जस्ट टू इवेट टैक्सेस। अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना दिया ट्रांजैक्शन आपने, तो उसको भी सस्पिशियस मान सकते हो। एनी ट्रांजैक्शन अपियरिंग टू हैव नो इकोनॉमिक रैशनल और बोनाफाइड पर्पस, मतलब ये ट्रांजैक्शन का कोई बोनाफाइड पर्पस या कोई सेंस नहीं बनता, प्रॉबली अगेन लाइक गार, खाली टैक्स अवॉइड करने के लिए कुछ ये कर रहा है बंदा वगैरह। एंड लास्ट, टेररिज्म का कोई एक्टिविटी से रिलेटेड है या उसको फाइनेंस करने का मोटिव है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो सस्पिशियस है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी को इसके रिकॉर्ड्स रखने होंगे। अच्छा, लास्ट, कैसा रिकॉर्ड्स रखना है, तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कौन से करेंसी में है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और कौन से पार्टीज टू ट्रांजैक्शन है, ये रूल 4 ने बोला हुआ है कि आपको ये सब रखना है। अच्छा, रिकॉर्ड्स हार्ड कॉपी में रख सकते हो, साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हो, मतलब बेसिकली दोनों ही आपको रखना होगा। और ये जो भी है रेगुलेटर बताएंगे, आरबीआई है, सेबी है वगैरह, ये सब रूल्स धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। ओके, चलो वाइंड अप करते करते एक लास्ट चीज, मेरी एक वेबसाइट बनाई है मैंने, तो ये आप kevinarya.com पे जाके देख सकते हो। सीए, सीएस एंड सीएफए के प्रोडक्ट्स है, उसमें सीए और सीएफए का लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, एंड स्लोली स्लोली आई विल बी एडिंग सम प्रोडक्ट्स। एंड एक लास्ट चीज है, याद रखना, May 22 का अमेंडमेंट वीडियो, तो मे वालों के लिए एक शायरी है कि भाई, नेवर सरेंडर, नेवर सरेंडर, आफ्टर एवरी मे देर इज नवंबर। तो हाँ, हंसने का जरूरत नहीं है, आफ्टर एवरी में देयर इज नवंबर, बट अपने को नवंबर में नहीं जाना है, तो भाई पढ़ लो थोड़ा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।